Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Glory to the Lamb of God. Glory to the Lamb of God. Glory to the precious Lamb on the throne. Hallelujah. Worship you, Lamb of God. We worship you. We glorify your holy name. Worship you and glorify your holy name. We worship you and glorify your holy name. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Worship your holy name. Lord, we worship your holy name. Lord, we worship, 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 worship. Hallelujah. Let's gather together to worship the King of Glory, the one who suffered, bled, and died on the cross of Calvary, who died for you and me a horrific death, who went into the lower parts of the earth. There he proclaimed his conquest over those demonic entities. And on the other part, he delivered all the righteous souls and came out of the grave gloriously on the third day. Hallelujah. There is none like him. There is none besides him. Hallelujah. He has conquered Thanatos, death. He has conquered Hades. Hallelujah. Hell, the gatekeeper of hell, they all bow before him. Hallelujah. Glorious, victorious King Jesus. Let's all gather to worship him. Open up your mouth and begin to praise him. Hallelujah. Open up your mouth wherever you are, whatever part of the world you are logged on. Let's all worship King of Glory. Hallelujah. 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 King of Glory, Jesus of Nazareth, is bigger than any virus, is greater than any problem. Hallelujah. No matter what is going on around the world, Jesus Christ, the Lamb of God, is seated at the right hand of the Creator. Hallelujah. He is seated till all his enemies are made his footstool. Hallelujah. Hallelujah. अपना मुंह खोले सब यीशु मसीह का धन्यवाद करें. Hallelujah. धन्यवाद करें. Hallelujah. 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 He is your high priest, and he is not your high priest after the order of Aaron. He is your high priest after the order of Melchizedek. Hallelujah. Melchizedek सरीखा वो आपका महायाजक है. उसका नाम है यीशु मसीह. हालेलुया. सब अपना मुंह खोले, यीशु मसीह की स्तुति करें. Hallelujah. Lord Jesus, we bless you. Lord Jesus, we come under your blood. There is a fountain flowing. Lord, the fountain of your precious blood has prevailed over Hades and the underworld, has prevailed over every power of darkness. Hallelujah. Every demon in hell trembles at your blood. Lord, power and the frequency that is in your blood against the radiation that 5G is causing, vicious virus, Lord, that is killing many people around the world. I release the frequency of the blood of Jesus. यीशु मसीह तेरे लहू की फ्रीक्वेंसी को मैं रिलीज करता हूं. यीशु मसीह के लहू में फ्रीक्वेंसी है, डिवाइन फ्रीक्वेंसी. It will destroy the radiation. Hallelujah. It will kill everything that is coming against you. The forces of darkness that are wanting to hijack this world, but they will not succeed, for Jesus has already crushed them. Jesus has already conquered them. Let's declare his dominion. Let's declare his kingship. यीशु मसीह के राज्य को खोलें. यीशु मसीह की सामर्थ को खोलें. Hallelujah. Look at Jesus now. Focus on him. Looking unto him, Jesus of Nazareth, the author and perfecter of our faith. Hallelujah. Hallelujah. Jesus of Nazareth. Let's focus on him. सब तरफ से अपना ध्यान हटाइए, यीशु मसीह की ओर अपना ध्यान लगाइए. सभी तेरा धन्यवाद यीशु मसीह. हम तेरी महिमा करते हैं प्रभु यीशु मसीह. हम आज नेपाल के लिए प्रार्थना करते हैं, राष्ट्र को तेरे आगे उठाते हैं. वी प्रे फॉर द किंगडम ऑफ नेपाल. वी प्रे फॉर एवरी नेपाली, Father, that doesn't know you. I pray for them that they'll come to know you. I pray for the believers, Father, your blood bought in Nepal, that you will protect them. Father, that in this hour of crisis and tragedy, as the pestilence is wreaking havoc around the world, Father, your divine protection will be unleashed upon your loved ones. जो तेरे नाम से डरते हैं, तेरा भय खाते हैं, यीशु मसीह, उनके ऊपर अपने पंखों को फैला नेपाल में. हालेलुया. हम तेरा धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह, तेरा धन्यवाद करते हैं. हालेलुया. सब मेरे संग बोले, मेरे पीछे बोले यीशु मसीह का नाम. यीशु मसीह का, द नेम ऑफ जीसस इज यहोशा हा मशियाक. से आफ्टर मी, यहोशा हा मशियाक. यहोशा हा मशियाक.
यहूशा हा मशियक, यहूशा हा मशियक, यहूशा हा मशियक। जो नाम जिब्राइल फरिश्ते ने मरियम को बोला वो नाम है यहूशा हा मशियक, 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 यहूशा हा मशियक। हालेलुया, हालेलुया। सब मिलके गाएं। तेरे नातों है हयाती, खून तेरे तो खलासी, तेरा रुतबा सब तो आला, दस दे जाइए। तेरे नातों शाना वालिया वारी जाइए। यसु 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 जप दे जाइए। तेरे नातों शाना वालिया वारी जाइए। तेरे नातों है हयाती, खून तेरे तो खलासी, तेरे नातों है हयाती, खून तेरे तो खलासी, तेरे नातों है हयाती, खून तेरे तो खलासी, तेरा रुतबा सब तो आला कहंदे जाइए। तेरे नातों शाना वालिया वारी जाइए। तेरे नातों यसु सोनिया वारी जाइए। तेरे नातों यसु शाफिया वारी जाइए, वारी जाइए। आइए मिलके प्रार्थना करें। Lord Jesus, we lift up Nepal before you. We pray that your spirit will move in Nepal like never before, that you will unleash your angels, your battalions in Nepal. Father, you will send your servants who are anointed by your spirit, and they will carry your word all over Nepal. Up on the mountain tops there are hundreds of scattered little tiny villages where nobody has gone with the love of Jesus. May your love reach to them. May the light of the gospel shine in Himalayas. We present Nepal before you. We lift up the Church of Nepal. We pray for a great awakening. Hallelujah. Mighty harvest in Nepal. प्रभु यीशु मसीह नेपाल में एक अद्भुत काम हो, तेरी सामर्थ नेपाल में काम करें। हम नेपाल को तेरे कीलशिदे हाथ में सौंपते हैं। तेरे नाम की महिमा हो यीशु मसीह, तेरे जलाली नाम में प्रभु इस प्रार्थना को हम मांगते हैं। आमीन। हालेलुया। सबको जय मसीह की। मैं आज सुबह आपको बता रहा था प्रकाशित वाक्य में से कि प्रकाशित वाक्य में यीशु मसीह वायदा करते हैं। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय के 10 वचन में यीशु मसीह कहते हैं उस कलीसिया से, यीशु मसीह कहते हैं संसार पे। पढ़ लीजिए प्रकाशित वाक्य 3 की 10। अपनी बाइबल खोलिए, प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय उसका 10 वचन। टर्न टू Revelation chapter number 3 and ponder over verse number 10 once again. Revelation 3 and verse number 10. प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय उसका 10 वचन। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि जब आप ऑनलाइन आएँ अपनी बाइबल रखें संग में, अपनी बाइबल खोलें। भाई और बहनों, हमें अब कुछ करने के लिए बाकी रहा नहीं है। हालेलुया। इससे बड़ा काम और क्या है। आप परमेश्वर के वचन का अध्ययन करें और प्रार्थना में समय बिताएं। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य 3 के 10 को मैं आपके सामने पढ़ता हूं। हालेलुया। फिलाडेल्फिया की कलीसिया को यीशु मसीह क्या कहते हैं? प्रभु यीशु मसीह कहते हैं,
Since you have kept to endure patiently, I will also keep you from the hour of trial that is going to come on the whole world to test the inhabitants of the earth. क्योंकि तूने मेरे वचन को पकड़ा और धैर्य से तूने हर चीज का सामना किया, इसलिए मैं तुझे उस घड़ी से, जो संकट की घड़ी पृथ्वी पे आ रही है, यीशु मसीह कहते हैं मैं तुझे बचाऊंगा। मैं आपको सुबह बता रहा था कि बाइबल के अंदर नए नियम में ग्रीक भाषा, यूनानी भाषा में ये जो शब्द है जो यहाँ पे इस्तेमाल हो, वो 50 बार ये शब्द आया है। ये वर्ड है एक ग्रीक में। प्रभु कहते हैं कि मैं तुझे संसार में से जब संकट आएगा निकाल लूंगा। 50 की 50 बार जब ये शब्द आया बाइबल में, आई विल टेक यू आउट व्हेन द ट्रायल कम्स, जब विपत्ति आएगी मैं तुझे निकाल लूंगा। ये शब्द 50 बार आया और हर बार इसका मतलब होता है बीच में से निकाल लेना। जब पृथ्वी पे ट्रायल आएगा, ट्रिबुलेशन आएगी, 7 साल का सताव आ रहा है पृथ्वी के ऊपर। मैंने आपको 4 घोड़ों के विषय में बताया। मेमना उस स्क्रोल को लेता है, वो जो स्क्रोल है, जो किताब जिसे 7 मोहरें अंदर से और बाहर, जिस 7 मोहरें लगी हैं जो अंदर और बाहर से लिखी गई है। मैं सुबह आपको बता रहा था पृथ्वी की मिरास की टाइटल डीड है, ब्रह्मांड पूरे ब्रह्मांड की टाइटल डीड है, लीगल डॉक्यूमेंट है सृष्टि के। और सृष्टि शैतान के हाथों में बिक चुकी थी आदम के पाप के कारण। यीशु मसीह ने सृष्टि को अपने लहू का दाम देके फिर खरीद लिया। उसकी मोहरों, 7 मोहरों को कोई तोड़ नहीं सकता था ब्रह्मांड में, लेकिन यीशु मसीह जयवंत हुआ। शैतान यीशु मसीह को यह टाइटल डीड देना चाह रहा था, उसे कह रहा था मेरे आगे झुक तो मैं तुझे दे देता हूं। लेकिन यीशु मसीह ने कहा मैं तुझे क्रूस पे हरा के इसे वापस लूंगा और पताल में तुझे खुल्लम खुल्ला तमाशा बना के। बाइबल में लिखा यीशु मसीह जब पताल में गए, यीशु मसीह ने शैतान को खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया। यीशु मसीह ने शैतान के जो इधर मेडल लगे होते हैं ना, ऐसे उखाड़ के फेंक दिए। शैतान के पास अधिकार नहीं है, आपको मालूम किसके खिलाफ? जो यीशु मसीह के लहू में छिपा हुआ है, जो यीशु मसीह के लहू के नीचे जीता है, उसके ऊपर शैतान का कोई अधिकार नहीं। हालेलुया। वचन में लिखा है जिसके अंदर जो परमेश्वर से जन्मा है, यूहन्ना अपनी पत्री में लिखता है, वो पाप नहीं करता क्योंकि परमेश्वर का बीज उसके अंदर बना रहता है। जो जैवंत जीवन जीता है भाई और बहनों, लहू के साए के नीचे धर्मी जीवन जीता है, उसके विरुद्ध शैतान को कोई अधिकार नहीं। यीशु मसीह के पास ये टाइटल डीड है और इस टाइटल डीड को यीशु मसीह खोलते हैं। मैंने आपको बताया 4थे अध्याय के पहले वचन में कलीसिया उठा ली गई। 4थे अध्याय के अंदर यहोवा पिता का सिंहासन लगा है। 4थे और 5वें अध्याय में स्वर्ग के अंदर सुप्रीम कोर्ट खुला है, वहां पे कौमों कौमों के फैसले हो रहे हैं, न्याय हो रहे हैं। और यीशु मसीह को वो टाइटल डीड दी गई जिसके अंदर मिरास है पूरी दुनिया की। और यीशु मसीह उन मोहरों को खोलने के लिए जयवंत हो गया। जैसे वो मोहरें खुलती हैं, हम कल परसों अध्ययन करते जाएंगे, एक एक मोहर खुलते ही एक एक बड़ी विपत्ति पृथ्वी पे आती है। महाक्लेश, महासंकट पृथ्वी के ऊपर आता है, जैसे मेमना मोहर खोलता है। आपको मालूम ये परमेश्वर का जो मेमना है ये बहुत प्रेमी है। ये जब क्रूस पे लटका था, अथाह पीड़ा में था, उसकी वेदना का हम जिक्र नहीं कर सकते। उसको इतना कुचला गया, इतना रौंदा गया कि वो मनुष्य लगता ही नहीं था। अपने जीवन के आखिरी लम्हों में उसको सांस लेना दुश्वार था। और नीचे खड़े फरीसी, सदूकी, धर्म के ठेकेदार उसको ठट्ठों में उड़ाते हैं। क्रूस पे लटका यीशु उनकी ओर देख के क्या कहता है? कहता, फादर फॉरगिव देम फॉर दे नो नॉट व्हाट दे डू। पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि इन्हें नहीं मालूम ये क्या कर रहे हैं। वो उन्हें क्षमा करता है। अपने जीवन के आखिरी लम्हे में भी यीशु मसीह क्षमा करता है। इसी क्षमा की सामर्थ को देख के वो चोर बदलता है। मैंने आपको वचन में बताया था, यीशु मसीह के चरणों में अपना जीवन गेर देता है। हालेलुया। यीशु मसीह अपने जीवन के आखिरी लम्हे में भी क्षमा करते हैं और यीशु मसीह अपने जीवन के आखिरी लम्हे में भी रूह बचाते हैं। ये 2 काम आपके जीवन में होने चाहिए भाई और बहनों। जब आप इस लॉकडाउन में हो, क्षमा करें सबको। मेरे संग लोगों ने बहुत बुरा किया, पासवानों ने किया, मुझे चीट किया,
जिनके लिए मैंने इतना कुछ किया उन्होंने मेरी पीठ में खंजर घोंपा, बुरा बोला मेरे विषय में, चुगलियाँ की, गलत बातें बोली। मैंने किसी को जाके नहीं बोला कि मैं सही हूँ वो गलत है। मैंने यहोवा के हाथ में सौंप दिया सब कुछ, सबको क्षमा किया। हालेलुया। आप भी क्षमा करें। 2 बातें सीखें यीशु मसीह से, यीशु मसीह के जीवन के आखिरी चंद मिनटों की। वो क्षमा करता है और वो रूह बचाता है। ये 2 काम सीख लें कम से कम। क्षमा करें और आत्माएं जीतें। हालेलुया। और आपको मालूम, यीशु मसीह क्षमा करता है, लेकिन अब यीशु मसीह क्षमा नहीं करेगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार 5 अध्याय का 22 वचन पढ़िए, अपनी बाइबल खोलिए। यूहन्ना 5 के 22 में लिखा है, यहोवा पिता कहता है कि मैं अब किसी का न्याय नहीं करूंगा, दंड नहीं दूंगा। न्याय करने का, जजमेंट करने का सारा इख्तियार मैं यीशु मसीह को देता हूं। क्यों पिता ने दिया यीशु मसीह को दुनिया की कौमों को जज करने का अधिकार? क्योंकि यीशु मसीह जैसा क्षमा करने वाला कोई नहीं है। हालेलुया। इस ब्रह्मांड में कोई नहीं हुआ जो यीशु मसीह की तरह माफ करे। इसलिए अब यीशु मसीह न्याय करेगा। वो मोहरें खोलेगा और पृथ्वी के ऊपर ऐसा प्रकोप बाढ़ की नहीं आएगा भाई और बहनों। लेकिन प्रभु क्या कहता, जो आज मैं आपको बता रहा था। पढ़िए प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय और उसका प्रकाशित वाक्य 2 का 28 पढ़िएगा। खोलिए अपनी बाइबल, प्रकाशित वाक्य 2 का 28 वचन पढ़िए। देखिए प्रभु जी क्या कहते हैं। प्रकाशित वाक्य 2 का 28, यहां पे यीशु मसीह कहते हैं, टू द वन हु इज विक्टोरियस एंड डज माई विल टू द एंड। जो जयवंत होता है। आपको मालूम 3 बातें यीशु मसीह कहते हैं। पहली बात कहते हैं जो जयवंत है। दूसरी बात कहते हैं यीशु मसीह जो फल पैदा करता है, फल लाएगा जिसका जीवन। तीसरी बात यीशु मसीह कहते हैं जो वफादार है अंत तक, उसे प्रतिफल मिलेगा। सबको प्रतिफल नहीं मिलेगा। प्रतिफल उन्हें मिलेगा जो जय पाते हैं, जो वफादार हैं प्रभु के, और जो फल पैदा करते हैं। 3 कैटेगरीज हैं रिवॉर्ड की। और यीशु मसीह कहते हैं, टू द वन हु इज विक्टोरियस एंड डज माई विल टू द एंड आई विल गिव अथॉरिटी ओवर द नेशंस। उसे मैं कौमों के ऊपर हाकिम ठहराऊंगा। किंग बनेंगे, वो चांसलर बनेंगे, गवर्नर्स बनेंगे, एडमिनिस्ट्रेटर बनेंगे। और प्रभु क्या कहते हैं, दैट वन, 26 वचन मैंने पढ़ा है, दैट वन विल रूल them with an iron scepter and will dash them to the pieces like pottery। 27 वचन 2 का 27 प्रकाशित वाक्य, just as I have received authority from the Father। अब यीशु मसीह क्या कहते हैं, 28 वचन देखिए, I will also give that one the morning star। उसे मैं भोर का तारा दूंगा। क्या दूंगा? यीशु मसीह कहते हैं सुबह का तारा उसे मैं दूंगा। आपको मालूम है सुबह का तारा क्या है? सुबह उठ के 3 बजे 3:30 बजे देखिएगा, ये नॉर्थ साइड में एक तारा चढ़ता है। ये असल में प्लेनेट है, इसका नाम है वीनस। ये जब सुबह होने लगती है, प्रभात होने लगती है, तब चढ़ता है। यीशु मसीह को कहा गया सुबह का तारा। जब ये तारा चढ़ता है, इसका मतलब ये अंधेरे के अंत की घोषणा करता है। और ये प्लेनेट यीशु मसीह के नाम से जाना जाता है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, प्रकाशित वाक्य उसका 22 अध्याय और उसका 16 वचन पढ़िएगा। आप अपनी बाइबल खोलिए, प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय का 16 वचन। वहां पे यीशु मसीह कहते हैं, आई एम द ब्राइट एंड द मॉर्निंग स्टार। मैं हूं वो चमकता हुआ भोर का तारा। वो यीशु मसीह कहते हैं, मैं अपने आप को तुझे दूंगा, हालेलुया, और तुझे संसार में से निकाल लूंगा। जो जय पाएगा, हालेलुया, जगत में से तुझे मैं निकाल लूंगा। जब विपत्ति आएगी भाई और बहनों, आप 7 साल के शैतान के सताव में नहीं जाओगे। लेकिन उसकी कंडीशन क्या है, मैं आज आपको बताना चाहता हूं। मेरे संग निकालें मलाकी नबी की पुस्तक, खोलिए मलाकी नबी की पुस्तक, हालेलुया। पुराने नियम की आखिरी पुस्तक है मलाकी, और उसका 3रा अध्याय निकालिए। 3रा अध्याय पासवानों का फेवरेट है, क्योंकि दशमांश की बात की गई इसमें। लेकिन मैं दशमांश की बात नहीं करने जा रहा आपसे, मैं बहुत गहरी बात आज आपसे करने जा रहा हूं। और मैं समझता हूं कि आप इसे सीखेंगे
और ये प्रकाश आपके जीवन को बदल देगा। प्रकाशित वाक्य नहीं, मलाकी नबी की पुस्तक, उसका 3 अध्याय और उसका 16 वचन पढ़िए अपनी बाइबल में से। प्रकाशित वाक्य मलाकी की पुस्तक 3 अध्याय का 16 वचन। प्लीज लिसन केयरफुली। देन दोज हु फियर्ड द लॉर्ड टॉक टू ईच अदर। हालेलुया। क्या कहता है प्रभु का वचन? प्रभु का वचन कहता है दोज हु फियर्ड द लॉर्ड। आपको मालूम, यहोवा से डरने वाले लोगों का झुंड अलग है। अगर मैं आपसे पूछूं आप में से कितने यीशु मसीह से प्यार करते हैं, तो आप सभी कहेंगे जी हम प्रभु से प्यार करते हैं। और मैं इसे चुनौती भी नहीं दूंगा, आप प्रभु से प्यार करते होंगे। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि आप यीशु मसीह से डरते हैं, तो आपको अपने दिल पे हाथ रख के अपने अंदर खोजना चाहिए कि क्या आप वाकया यीशु मसीह से डरते हैं या नहीं। ये अलग ग्रुप है लोगों का, ये अलग झुंड है। ये लिखा है दे हु फियर्ड योड हे वाव हे। यहोवा का नाम है योड हे वाव हे। मेरे संग बोलें प्रभु का पवित्र नाम योड हे वाव हे। फिर बोले योड हे वाव हे, योड हे वाव हे, योड हे वाव हे। ये नाम ही आपको चंगा करता है। हालेलुया। ये अति पवित्र नाम है यहोवा पिता का। यहाँ पे लिखा है दोज हु फियर्ड योड हे वाव हे। यहोवा से जो डरते हैं, डरने के लिए जो शब्द है हिब्रू लेक्सिकन में 3373 है। हिब्रू का शब्द 3373 और ये शब्द है यारा। यहोवा से डरते जो हैं, डर के लिए वर्ड है यारा, जिसका असली मतलब है दे हु ट्रेम्बल विद होली रेवरेंस, जो पवित्र भय से कांपते हैं। आपको मालूम, बहुत से लोग, पादरी, कलीसिया, आपके लिए यीशु मसीह बहुत फेमिलियर है। स्पिरिट ऑफ फेमिलियरिटी ने आपको घेरा हुआ है, आप डरते नहीं हैं उससे। उसका पवित्र भय नहीं है आपके हृदय में। ये उन लोगों का झुंड है जो प्रभु से डरते हैं। लिखा है देन दोज हु फियर्ड द लॉर्ड टॉक टू ईच अदर। और ये आपस में, असली भाषा में लिखा शब्द बोल रहे हैं। और शब्द के लिए वचन है दबार। परमेश्वर के कलाम को हिब्रू में दबार कहा गया है। ये जो प्रभु से डरते हैं, ये आपस में बैठे हैं और परमेश्वर का कलाम बोल रहे हैं एक दूसरे के साथ। फालतू की बातें नहीं कर रहे। वचन में लिखा है व्हेन यू स्पीक, स्पीक एज द ऑरेकल्स ऑफ गॉड। अगर तुम बोलो तो यहोवा का कलाम बोलो। ये प्रभु से डरवैये, प्रभु के डरवैयों का झुंड है। आपस में दबार, यहोवा का दबार बोल रहे हैं। योडे वावे के लिए वर्ड है H3068। यहोवा का कलाम एक दूसरे से बोल रहे हैं। और आपको मतलब इसमें खास चीज क्या है, हिब्रू ग्रामर में यहां पे 2 बार सुनना शब्द आया। जब ये बोलते हैं, यहां लिखा देन दोज हु फियर्ड द लॉर्ड टॉक टू ईच अदर। एक दूसरे से बात कर रहे हैं, प्रभु से नहीं कर रहे, लेकिन प्रभु की बात कर रहे हैं एक दूसरे से। हालेलुया। किसकी बात कर रहे हैं? यहोवा की। और वर्ड है दबार, वर्ड ऑफ गॉड बोल रहे हैं। फालतू बातें नहीं बोल रहे। अनलीशिंग द वर्ड, रिलीजिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वर्ड ऑफ द लॉर्ड इन द एयर, एंड दे आर टॉकिंग टू ईच अदर। और लिखा एंड द लॉर्ड लिसन्ड एंड हर्ड। 2 वर्ड है यहाँ पे। तब योडे वावे, यहोवा ने, लिखा लिसन्ड एंड हर्ड। यहाँ पे 2 वर्ड हैं। पहले एक वर्ड है हार्कंड, उसके लिए हिब्रू वर्ड है खशाब, H7181, जिसका असली मतलब है कान झुका के ध्यान से सुनना, किसी की आवाज को अहमियत देना, कोई बोले तो उसका रिगार्ड करना। जैसे मान लो कोई बहुत बड़ा व्यक्ति आपसे बोले, आपके घर में मान लो अमेरिका का प्रेसिडेंट आ जाए, हमारे देश का प्राइम मिनिस्टर आ जाए, तो एकदम आप डर जाएंगे भय से, और वो बोलेगा तो आप सुनेंगे। स्वर्ग का परमेश्वर इन डरवैयों की, जो उससे डरते हैं, उसकी बातें सुन रहा है कान झुका के, और उनकी बातों को रिगार्ड कर रहा है। हालेलुया। और दूसरा वर्ड है क्षमा। क्षमा का मतलब आपको मालूम क्या होता है? बहुत पावरफुल वर्ड है। क्षमा करना बोलते हैं। हियरो इज़राइल को हम बोलते हैं शिमा या श्रेयल। इज़राइल, यहोवा की आवाज सुन। और ये जो क्षमा है, इसका मतलब होता है सुनना और आज्ञा मानना। प्रभु अपने लिए ये 2 शब्द लगा रहा है। पहला शब्द लगा रहा है कशाब,
कि वो कान दे के झुका के सुनेगा और उनकी बातों को रिस्पेक्ट दे रहा है। कौन? सृष्टि का रचिता। और फिर लिखा है शिमा, मतलब आज्ञा मान रहा है। देखते भाई और बहनों, बहुत से लोग दुआएं करते हैं। अभी पादरी साहब, कई बड़े बड़े पादरी साहब कोरोना को जूते मार रहे थे, लेकिन सुना नहीं यहोवा ने उनकी बात को। किसके बात को स्वर्ग का परमेश्वर रिगार्ड करता है? जो उसका डरवैया है, जो उसके मार्गों में चलता है। जो डरवैया है वो उसकी आज्ञाओं को मानता है। हालेलुया। वो यहोवा का सही वचन देगा, लोगों को ठगेगा नहीं। जो अभिषेक हमारे ऊपर है, उस अभिषेक को हम फाइनेंशियल गेन में कन्वर्ट नहीं करेंगे। अपने अभिषेक के को लोगों को दिखा के कि मैं बहुत बड़ा हूँ, मुझे अधिकार मिला है, आप मुझे पापा कह सकते हो, सबको नहीं मिला, एलिया एलीशा की स्टोरी सुना के, ये नहीं करेगा। जो सच्चा सेवक होगा वो अपने आप को एक हलीम नौकर के रूप में पेश करेगा। आपको मालूम प्रेरित पौलुस कुरिन्थियों की कलीसिया को क्या लिखता है? प्रेरित पौलुस कहता है मसीह के निमित्त हम तुम्हारे नौकर हैं। और वर्ड यूज करता है डायाकोनिया, गुलाम हैं हम। मेरे लिए ये कहना तो बहुत खुशी की बात है कि मैं यहोवा का नौकर हूं, पर मैं असल में कलीसिया का भी नौकर हूं। मैं सेलिब्रिटी बन के नहीं रह सकता कि कोई मिले नहीं मुझसे, मैं छिपके रहूं, क्योंकि मिलूंगा नहीं, छिपके रहूंगा तो मेरी मार्केट वैल्यू बनेगी, भाव बढ़ेगा। फिर मैं लोगों को बोलूंगा अगर मिलना है तो 20,000 रुपया दो भैया, 1.5 लाख दो, 50,000 दो, 75,000 दो, डायमंड पार्टनर, गोल्ड पार्टनर, प्लेटिनम पार्टनर। ये सब बातें प्रभु को नापसंद आई हैं। अभिषेक मनी बनाने के लिए नहीं है। जिस समय एलिया ऊपर चला गया, उड़ गया रथ में, यहोवा के अग्नि में जलाली रथ ले गए। उसके जो चद्दर थी उसका नीचे सेवक था, उसने कहा मुझे तेरा दुगना हिस्सा मिले। बहुत सारे पादरी बोलते हैं लेकिन उनको मालूम नहीं दुगने हिस्से का मतलब क्या है। आपको मालूम एलीशा जो है अपने स्वामी एलिया का नौकर है। उसके विषय में क्या लिखा है? उसके विषय में लिखा एलीशा जो अपने स्वामी एलिया के हाथों पे पानी डालता था। वो हिब्रू फ्रेज है भाई और बहनों, उसका मतलब है सन ऑफ द कप। वो अपने स्वामी के लिए कटोरे का पुत्र है और वो अपने स्वामी की सेवा करता रहा। अब उसके स्वामी के जाने का समय आया तो वो अपने स्वामी से क्या विनती करता है? 4 पड़ाव आते हैं उसके जीवन में, 4 इम्तिहान की घड़ियां। गिलगाल आता है, उसके बाद बैतेल आता है। गिलगाल वो जगह है जहां पे खतना होता है, मांस कटता है, शरीर की अभिलाषाएं मारी जाती हैं। उसने बोला गिलगाल में ठहरा रहा है, तेरे शरीर की अभिलाषा मारी गई। बोला नहीं, मुझे जीवते परमेश्वर की सौगंध, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। वो बैतेल जाता है। आपको मालूम बैतेल कौन सी जगह है? बैतेल वो जगह है जहां याकूब सोता है और एक सीढ़ी देखता है, पत्थर का सराहना लेके सोता है, और सीढ़ी है, पृथ्वी को एक सिरा छूता है, दूसरा सिरा स्वर्ग में है। उसने उसका नाम रखा बैतेल, द हाउस ऑफ गॉड। वो जगह जहां स्वर्ग पृथ्वी को चूमता आके, जहां स्वर्ग का फाटक खुलता है, बैतेल। भक्ति, आराधना, स्तुति गान। वो कहता है बैतेल में टिका रहा है, वो कहता है नहीं मैं यहाँ नहीं टिकूंगा। वो तीसरी जगह जाता है जिसका नाम है यरीहो, जहाँ पे लड़ाई है। यरीहो में कौन थे? दैंत थे, नफलीम, जो मिक्स ब्लड थे, जिनके अंदर शैतान का बीज था, हाइब्रिड थे, नफलीम थे, बड़े बड़े दैंत, और बड़ी बड़ी शहर बना थी। वहाँ युद्ध हुआ, संग्राम। यरीहो में पहुँचे, उसने बोला यरीहो में ठहर। उसने बोला मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं लड़ाई के संग्राम में भी नहीं रहूँगा हमेशा के लिए। मुझे जीवते परमेश्वर की सौगंध, मैं तेरे पीछे आऊँगा। वो गया अपने नौकर को लेके, कौन सी जगह? यरदन। भाई और बहनों, आपको मालूम यरदन क्या है? यरदन वो जगह है जहाँ प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना के हाथों बपतिस्मा लिया और स्वर्ग खुल गया। यरदन में जाके स्वर्ग खुलता है और स्वर्ग से आकाशवाणी आती, ये मेरा प्यारा पुत्र है, इससे मैं प्रसन्न हूँ। यरदन में विजन मिलता है और यरदन दरिया के ऊपर एलिया ने उस गमशे को, उस चद्दर को मारा पटक के, यरदन फट गया। सूखी भूमि उसी समय निकली और एलिया और उसका सन ऑफ द कप, उसके हाथ पे पानी डालने वाला एलीशा संग संग चले। उसने कहा तूने कठिन चीज मांगी है, पर अगर तू मुझे ऊपर जाते देख लेगा। आपको मालूम इसे क्या बोलते हैं जूइश लोग? इसे बोलते हैं मरकाबा। मरकाबा का मतलब होता है स्वर्ग
खुलते हुए स्वर्ग का दर्शन पाना। ये हिब्रू में मरकाबा कहा जाता है इसको, स्वर्गीय दर्शनों को देखने की काबिलियत मिल जाना। उसने कहा अगर तुझे ये काबिलियत मिल गई तो तुझे मिल जाएगा। क्या मांगा उसने? दुगना हिस्सा। अब बहुत से लोग कहते हैं जी दुगना हिस्सा मांगा ताकि दुगने चमत्कार करे, दुगने मौजे करे, दुगनी चंगियाइयाँ करे, दुगने मुर्दे जिंदा करे, अपने स्वामी से दुगनी पब्लिसिटी मिले, दुगनी मशहूरी मिले, दुगना बड़े नंबर का बाबा जी बने, बड़ा पापा बन जाए अपनी एलिया से भी। ये नहीं थी उसकी ख्वाहिश अलीशा की। अलीशा अपने नौकर का सन ऑफ द कप था, प्याले का पुत्र था। आपको मालूम डबल पोर्शन का मतलब क्या होता है? दुगना हिस्सा सिर्फ पहलौठे पुत्र को दिया जाता है। अलीशा अपने स्वामी एलिया का पहलौठा बेटा बनना चाहता है। वो अपने स्वामी खुदा के मसा नबी का पुत्र बनना चाहता है। ये एक गहरा रिश्ता होता है। हर बंदे को पापा डैडी कहलाने के लिए कलाम नहीं कहता। ये समझ रहे हैं आप? ये बड़ी गहरी बातें हैं। एलिया अलीशा की बातें अपने ऊपर मत लगा लो। अभी एलिया अलीशा के जूते में पांव डालने के लायक नहीं हुए आप। समझ रहे हो मेरी बात? ये कटु वचन है लेकिन सत्य वचन है। तो उसने कहा अगर मुझे देख लेगा तो तुझे ये मिल जाएगा। उसने अपने स्वामी को जाते देखा। एलिया ने अपनी चादर फेंक दी, अभिषेक वाली, मसा वाली। उसे दुगना पोर्शन मिल गया, पहलौठे पुत्र होने का हक मिला। वो सिर्फ पुत्र बनना चाहता है, पापा डैडी नहीं बनना चाहता, बड़ा अपोस्टल चीफ प्रेरित नहीं बनना चाहता, केवल पुत्र बनना चाहता है। आपको मालूम सबसे बड़ा डिग्री दर्जा क्या है जो प्रभु आपको देता है? आप सृष्टि के रचयिता के पुत्र हो। अपोस्टल होना इससे बड़ा पदवी नहीं है, प्रेरित होना इससे बड़ी पदवी नहीं है, पुत्र होना सबसे बड़ी पदवी है। नौकर घर में सदा नहीं रहता लेकिन पुत्र हमेशा घर में रहता है। इसलिए एंटाइटलमेंट के पीछे मत भागो। अपने नाम के आगे बिशप, रेवरेंड, डॉक्टर, अपोस्टल, फलाना ढिमका, ये कुछ भी नहीं है। परमेश्वर के पुत्र और परमेश्वर की पुत्री होना सबसे बड़ी ब्लेसिंग है। जब वो चद्दर गिरी तो अलीशा ने क्या किया? अलीशा ने चद्दर को मरोड़ा और इस्राएल के परमेश्वर जिसकी सेवा उसका स्वामी एलिया करता था, जिंदा परमेश्वर का नाम लेके पानी पे मारा और पानी फट गया। हालेलुया, खबाला शकातरा, हालेलुया। इसलिए अभिषेक परमेश्वर के कामों को करने के लिए है, अपनी किंगडम बनाने के लिए नहीं, अपना कारोबार बिजनेस बनाने के लिए नहीं है। यीशु मसीह के राज्य के लिए अभिषेक है। हालेलुया। इसलिए इस अभिषेक को उसी काम के लिए इस्तेमाल करें। तो वापस लौटेंगे मलाकी में 3 अध्याय में। मैं आपको बता रहा था बहुत अद्भुत वचन है। 3:16 में वचन में लिखा है जो डरते हैं वो बातें करते हैं, कलाम बोलते हैं एक दूसरे से। तो यहाँ पे लिखा है कशाब शब्द है। यहोवा कान देता है, सुनता है और उनकी बातों को सत्कार देता है, ऑनर करता है। प्रभु सबकी बातों को ऑनर नहीं करता, सब दुआएं करते हैं। महत्वपूर्ण ये है कि किसकी प्रार्थना को हेवन ऑनर करता है, रिगार्ड देता है। और फिर दूसरा शब्द है क्षमा, जिसका मतलब है आज्ञा भी मानता है उन संतों की। प्रभु वो कहते हैं वो काम करता है। हालेलुया। और फिर क्या लिखा आगे? फिर आगे लिखा है ए स्क्रोल ऑफ रिमेम्बरेंस वॉज रिटन इन हिज प्रेजेंस कंसर्निंग दोज हु फियर्ड द लॉर्ड एंड ऑनर्ड हिज नेम। तो प्रभु के सामने क्या लिखा गया? सेफर वर्ड है। सेफर का मतलब होता है स्क्रोल। सेफर, स्क्रोल, H5612 वर्ड है हिब्रू में। सेफर, स्क्रोल लिख रहे हैं। कौन लिख रहे हैं? स्वर्गदूत लिख रहे हैं। शायद डायमंड की नोक से लिख रहे हैं, कीमती डायमंड की नोक से लिख रहे हैं। पहला सेफर, उसके अंदर लिख रहे हैं। जो लिखा जा रहा राइटिंग, उसे खताब कहा गया है, जहां से पर्शियन वर्ड किताब निकलता है। उर्दू में किताब खताब से निकलता है। ये वर्ड है H3789, ये हिब्रू वर्ड है, यहीं से ये वर्ड निकला है। और लिखा है रिकॉर्ड किया जाता है। किसके लिए? यादगिरी के लिए। हिब्रू वर्ड है जिक्रोन, H2146, जिक्रोन, स्मरण के लिए, याद किया जाएगा। स्वर्ग में किताबें हैं। मैं आपको कल बताऊंगा अगर प्रभु ने अनुमति दी कौन कौन सी किताबें हैं, उनके अंदर क्या क्या रिकॉर्ड लिखे जाते हैं। और जब समय आता है वो किताबें खोली जाती हैं, फिर प्रभु आपको स्मरण करता है। जैसे लिखा है यहोवा ने नूह को स्मरण किया, याद किया। फिर लिखा है यहोवा ने इसराइलियों को याद किया जब वो 400 साल से ज़्यादा मिस्र की गुलामी में रहे और उसे पुकारने लगे। फिर लिखा है यहोवा ने सारा को स्मरण किया।
फिर लिखा यहोवा ने राहेल को स्मरण किया। फिर लिखा यहोवा ने हन्ना को स्मरण किया। किन्हें स्मरण करता है यहोवा? जो उससे डरते हैं। हालेलुया। क्या करते हैं? डरते हैं यहोवा से। यहोवा से, वो यहोवा की उपासना करते हैं, पादरियों की नहीं करते, सेलिब्रिटी पास्टर पापा डैडियों की नहीं करते, यहोवा की करते हैं। हालेलुया। और वचन में क्या लिखा है? प्रभु क्या प्रॉमिस करता है कि प्रभु किताब में लिखता है, जिस तरह प्रभु अपने दूत को भेज के कहता है कुरनेलियस को, मैंने तुझे याद किया है। भाई और बहनों, प्रार्थना करें प्रभु से कहें, प्रभु मुझे याद करना, प्रभु मेरे घराने को, मेरे बेटे को, मेरी बेटी को याद करना। प्रभु अपनी उन पुस्तकों को खोलेगा, आशीषों की वर्षा आपके जीवन पे करेगा। हालेलुया। अगर आप डरते हैं प्रभु से, भय में चलते हैं, पवित्र जीवन जीते हैं। और क्या कहता है प्रभु? 17 वचन, ऑन दैट डे व्हेन आई एक्ट सेज द लॉर्ड ऑलमाइटी दे विल बी माई ट्रेजर्ड पोजेशन। अब प्रभु बात करता है ऑन दैट डे। ये कौन सा दिन है? ये वही दिन है जब मेमना मोहरे खोलेगा। ये जजमेंट का दिन है, न्याय का दिन जो पृथ्वी पे आ रहा है। प्रभु कहता ऑन दैट डे, इट इज कॉल्ड द डे ऑफ द लॉर्ड। प्रभु का दिन इसे कहा गया है। ये बहुत बड़े क्रोध का दिन है, इसे कोई सहार नहीं सकता। भाई और बहनों, वचन में लिखा ऑन दैट डे व्हेन आई एक्ट, जब मैं अपने क्रोध में काम करूंगा। क्या कहता है प्रभु? सेज द ऑलमाइटी, महाप्रतापी परमेश्वर कहता है, दे विल बी माई ट्रेजर्ड पोजेशन। ये जो लोग हैं जिनके नाम मैंने किताब में लिखे हैं, जो मुझसे डरते हैं, जो मेरा ही कलाम बोलते हैं, मैं जिनकी बातें कान दे के सुनता हूँ और जिनकी बातों को अहमियत देता हूँ और जिनकी बातों को मानता हूँ जो वो मुझे कहते हैं, प्रभु कह रहा है, प्रभु कहता है उन्हें मैं याद करूँगा और उस दिन वो क्या होंगे? मेरा ट्रेजर्ड पोजेशन होंगे। असली भाषा में लिखा है मेरे ज्यूल्स होंगे। मेरा जो मुकुट है उसके अंदर उन्हें नगीनों की तरह मैं जड़ूंगा, प्रभु कहता है। हालेलुया। और प्रभु क्या कहता है? आगे कहता है आई विल स्पेयर देम। जो 7 साल का शैतान का सताव आएगा, जो मैंने आपको पढ़ के बताया फिलाडेल्फिया की पत्री में से 3:10 में से, कि वो जो घड़ी संसार में आ रही संकट की, कलेश की, प्रभु कहता है मैं तुझे निकाल लूंगा उसमें से। प्रभु कहता है मैं उन्हें स्पेयर करूंगा, उन्हें बचा लूंगा, जस्ट एज फादर हैज कंपैशन एंड स्पेयर हिज सन दैट सर्व्स हिम। जैसे पिता तरस खाता है और अपने उस पुत्र को बचाता है जो उसकी सेवा करता है। अब फर्क है यहाँ पे, वो पुत्र जो यहोवा की सेवा करता है उसको प्रभु कहता है मैं बचाऊंगा। और प्रभु आगे क्या कहता है? एंड यू विल अगेन सी द डिस्टिंक्शन। अब इस वचन को 18 को गौर से पढ़िएगा। प्रभु कहता है फिर तुम फर्क समझोगे बिटवीन द राइचस एंड द विकेड। तब तुम्हें पता लगेगा कौन मेरा धर्मी दास था और कौन धर्मी नहीं था। तब तुम्हें भेद पता लगेगा। क्या भेद पता लगेगा? कि किसने मेरे सामने सही जीवन गुजारा है, कौन धर्मी। धर्मी के लिए शब्द है जदिक, राइचस, और कौन विकेड है, दुष्ट है, राशा उसके लिए वर्ड है, राशा। जदिक और राशा में भेद उस दिन मैं, प्रभु कहता, प्रकट करूंगा। हालेलुया। एंड बिटवीन दोज हु सर्व गॉड एंड दोज हु डू नॉट। और तब भेद पता लगेगा कि किन्होंने मेरी सेवा की और कौन धर्मी और पवित्र जीवन जिए और कौन नहीं। अब 4 वचन की पहली आयत पढ़ लें, आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे लिखा श्योरली द डे इज कमिंग इट विल बर्न लाइक फर्नेस। तंदूर की तरह जलाने वाला ये दिन है, ये आ रहा भाई और बहनों। लेकिन हमारे लिए क्या होगा इस दिन में? पढ़ लीजिएगा, मैं अभी बताना नहीं चाहता आपको, खुद पढ़िएगा। दुनिया को जलाने के लिए दिन आ रहा है, लेकिन जो यहोवा के डरवैये हैं वो बछड़ों की तरह कूदेंगे उस दिन, क्योंकि वो उन्हें निस्तारा देगा। तुरी फूकी जाएगी, प्रधान दूत की ललकार के साथ प्रधान चरवाहा उतरेगा, कब्रें खुलेंगी, अविनाशी दशा में मुर्दे जी उठेंगे और हम सभी नई देह हासिल करेंगे और हवा में उड़ जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु कहता है मैं उन्हें अपने क्राउन बनाऊंगा। जूल के लिए वर्ड जो है वो हिब्रू वर्ड है सिगुला। मेरे खास नगीने होंगे वो। आपको मालूम कौन है यहोवा के खास नगीने? किन्हें यहोवा बचाएगा रैप्चर में? मोहरे खुलेंगी, खुलने से पहले, गजब आने से पहले, सताव आने से पहले किन लोगों को प्रभु बचा लेगा? जो उससे डरते हैं। क्या आप प्रभु से डरते हैं? उसके डर में जीवन गुजारते हैं? अपना जीवन उसे समर्पण करें।
प्रभु से कहें आपके सभी गुप्त पापों से प्रभु आपको आज़ाद करे और आप धर्मी जीवन। आपको मालूम एक और वर्ड है जिसका मतलब होता है, प्रभु का पवित्र जन का मतलब होता है जो सीधी लाइन में चलता है। अपराइट कहा गया उसको, अपराइट अयूब को कहा गया, मतलब जो सीधी चाल चलता है, न दाएं न बाएं, न छल न कपट, न झूठ न फरेब, ना गुप्त पाप होते हैं उसके जीवन में, हरामकारी, जनाकारी, गंदगी, ठगी, चोरी, लालच, लोभ। सीधी चाल चलने वाला व्यक्ति उनकी बातें प्रभु सुनता है और पुस्तक में लिखता है और उन्हें स्मरण करता है। प्रभु स्मरण करेगा इस संकट की घड़ी आपको, अपना जीवन प्रभु को अर्पण करें। सब आइए प्रार्थना करें। हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद। हवा चे उड़ जाना है यस्सु ने जदों आना है, गाइए। हवा चे उड़ जाना है यस्सु ने जदों आना है, पिछे ना रह जावी तू चलिया रूदाए फरमाना है। हवा चे उड़ जाना है यस्सु ने जदों आना है, करन तैयारियां यस्सु वाले, मारन उडारियां यस्सु वाले, दुनिया नू छड्डना है हस हस के, यस्सु दे पुजारियां यस्सु वाले। हालेलुया। आंखें बंद कीजिए। प्रभु तुरी फुकते तेरे लोग उठाए जाएं, अपने लोगों को तैयार कर, श्वेत वस्त्रों से सुसज्जित कर अपनी कलीसिया को। प्रभु आध्यात्मिक बेदारी भेज, बनावटीपन, दिखावा और जो बनावट की सेवकाई है दिखावे की, प्रभु उसे बंद कर और सच्ची सेवका, सच्चे प्रेरित, सच्चे नबी, सच्चे गडरिये खड़े कर। प्रभु हमारे देश पे करुणा कर, हमारे देश की कलीसियाओं में आत्मिक जागरण भेज, तेरे वचन का प्रकाश भेज, तेरे भय में चलने वाले तेरे डरवैयों को खड़ा कर। तुझे जलाल देते हैं जिंदा मसीह, हम तेरे नाम की महिमा करते हैं, हम तुझसे प्यार करते हैं। अगर आपके जीवन में किसी को प्रार्थना की ज़रूरत है, मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूँ। Father, now I lift up anyone who would have any need, financial or physical healing, emotional or any family matter, any concern, Father, that would touch any aspect of their life. I bring your people before your throne of grace. May you stretch forth your holy hand, hands that were nailed to the cross, hands that still carry the scar. May you place those blessed hands on your people. Meet them at the point of their need, Lord God. I release your presence and your anointing. May your mighty hand move upon your people. May your mighty hand move, Lord God. May your mighty hand move. I speak the blessing of Abraham, our father, over your precious people. Hallelujah. सब मेरे संग संग बोले, आंखें बंद करें, बोले यहूशा हा मशियक, 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 यहूशा हा मशियक। मेरे संग बोलें अति पवित्र नाम, बोलें योद, संग संग मेरे पीछे बोलें योद हे वाव हे एडोनाई। मेरे संग गाएं योद हे वाव हे एडोनाई, योद हे वाव हे एडोनाई, योद हे वाव हे एडोनाई, योद हे वाव हे। हालेलुया। हमारे पिता इब्राहिम, हमारे पिता इसहाक, हमारे पिता इसहाक, हमारे पिता यकूब का जिंदा परमेश्वर, योद हे वाव हे यहूशा हमशिया, किंग ऑफ ग्लोरी, रूहा का कुदुस के वसीला से, पवित्र आत्मा की कुदरत के द्वारा आप सबको मसीह के लहू में लपेट के रखें। सब पे कृपा हो। भाई और बहनों, आप सबको प्रभु आशीष दे। यीशु मसीह के नाम में ये प्रार्थना मैं मांगता हूँ। कल हम 10:30 बजे फिर प्रार्थना करेंगे और कुछ प्रकाशित वाक्य में से कृपया दूसरे और लोगों को बताइए, इन वचनों को
मैसेजेस को शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए। वॉच पार्टी कीजिए, अपनी फेसबुक पे शेयर कीजिए और लोगों को जोड़िए ताकि सच्चा कलाम लोगों तक पहुंचे और यीशु मसीह का नाम ऊंचा हो। सी यू टुमारो 10:30।